हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे. Oh, hi. Welcome again all of our listeners to our show Learning by Leading, a podcast by feminist youth leaders. इस एपिसोड में हम बातचीत करेंगे आर्ट और सोशल इम्पैक्ट के इंटरसेक्शन की. I am Tudor, your host for the day, and I am very excited to be joined by my friend Himanshu and our guest speaker Anjali. So ये पॉडकास्ट बाइलिंगुअल होगा, हम अंग्रेजी और हिंदी में बातचीत करेंगे. So I'll let you know कि हमारे दोनों स्पीकर्स यंग लीडर्स हैं, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, जो कि क्रिएटिव टूल्स के जरिए सोसाइटी में डिफरेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं. And me, let's just say I am best at brewing conversations over coffee. My job profile is to create a space for people to talk. Before he enters, I want to share with you what Himanshu told me about his thoughts on who is leader. A leader is someone who can bridge the gap in the society and can motivate people to take action. He strongly believed that all art gets its meaning when a leader takes it to the ground for interaction, to talk to people, to communicate with people, to sensitize people. Perfect, he is here. Hi Toodle. Let's start with your journey. Tell us about yourself, Himanshu. Hello listeners, Johar. I am Himanshu from Ranchi, Jharkhand. I am a theatre artist and development sector professional. Basically, I explore the ways where we can use artistic activities to work on various issues. I work as an artist as well as a trainer, and I am excited to share my story of how I went from a passionate theatre artist to using it as a tool for social change. That's what we love to hear, Himanshu. So let's dive in. Can you tell us a bit about why you choose to work with arts? So it starts with my observation. I find we all are going through various ups and downs in our life, and हर किसी के अपने संघर्ष हैं. And in between all this chaos, we need to relax. We need to refresh our mood, our body. And for this, most of the people either engage in doing any kind of arts और वो बस enjoy करते हैं various art forms को like music, dance, theatre, films. लिस्ट बहुत लंबी है. Also, art connects people. Art breaks the language barrier, knowledge barrier, and many more. Especially when you work with youth, art helps a lot to connect with them. I connect with others by making coffee here. Your Garma Garam filter coffee is ready, Himanshu. This is my contribution to the art. So, Himanshu, tell us how you got started in theatre. I think I was born with deep interest in arts. Till 12th class, theatre was not the part of my life, but I was involved in artistic activities from my childhood. I have done my schooling from St. Joseph High School, where I participated in dance, music, painting, debate, and everything. My school was only for boys and situated in a very semi-urban setup in Ranchi, Jharkhand. So I also played female characters at my school, and I think that also helped me actually to understand gender from a very early age. Then during my graduation at Ranchi College Ranchi, which is a government college, I joined the theatre group of my college and it became an essential part of my life. I started doing theatre with professional groups. Then I got selected in the National School of Drama Varanasi Center, where I learned a lot about theatre practically. So I can say from the beginning I started to enjoy the stage and performances, and journey is still going on. So, it's all about performance. But I am curious to know how and why you got into development sector. As an artist, one would assume that the next step in your journey should be drama performance and productions. Then why it mixed with development sector? I grew up with certain problems in my community which I wanted to address, like gender inequality. I observed in it my college. Many of my female friends were very talented and toppers in this subject, but when they come to receive degrees in convocation, they came up with their children, or most of them were married, and this speaks to all the ground realities. After graduation, parents don't give freedom and give time to girls to make their career. They had to get married just after college. But boys have pretty much a lot of time to build their career. वो कुछ भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उनके पास समय है, उनके पास सपोर्ट है,
फिर जो दूसरी चीज़ जिसने मुझे बहुत इम्पेक्ट किया वो थी दहेज प्रथा. The dowry system strongly controls the whole life of a girl's parent. Ever since the daughter is born, the father starts saving for dowry. Their whole lifestyle revolves around the fact that they have to save money for their daughter's marriage. They compromise in everything. As I belong to Jharkhand, which is a tribal majority state, climate change is also a very serious issue for me. These are few examples today. To address these issues, I came into the development sector. I wanted to bridge the gap between performances and action taking. I feel that the development sector is a step towards taking action through the arts. I understand, but tell me, how does intersection happen? आपने क्यों स्टार्ट किया आर्ट को यूज करना डेवलपमेंट सेक्टर में? सो टूडल इन सोशल सेक्टर हम लोग बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज पे काम करते हैं. जैसे कि मैंने फैमिली प्लानिंग पे काम किया है, कॉन्ट्रासेप्शन पे काम किया है. इनिशिएटिंग कॉन्वर्सेशन इज अ ट्रिकी टास्क. पीपल डोंट स्टॉप फॉर यू एंड आई रियलाइज that first holding people's attention is a very important, and then sensitizing them is the next task. So I started using theatrical activities to connect with them, like we used small skits on contraception to spread the awareness and start the conversation. Art left a strong impression in our mind, and through art we can even speak about very sensitive issues. Otherwise, how would I begin a conversation on family planning or safe sex with men? Second thing I realize is that if you want to work with youth, then you have to think like them. Youth don't want to read long PDFs with only information. To engage them, we must use stories and graphics. Present your findings and insights in a very creative way, and that is the reason I started using the arts. Himanshu, I will now move towards the essence of our conversation. In arts, performances, and social change, where do you locate the idea of leadership? I see leadership in two ways. First is raising the voice for the community. All the people can't raise their voice for change because we all are going through our lives fighting individually and institutionally. That isn't easy to organize to raise a voice. So, as a youth leader, raising voice is important. Second is passing the knowledge. All the people of my community can't get the opportunities to learn and grow. So, as a leader, it is essential to pass all the knowledge and learnings to the community you get through programs like our Feminist Leadership Lab. Only 30 people can be part of it, but the number of people who need change is very big. As a leader, we have to pass those learning and resources to the community. Your experiences is so insightful, and I want to keep listening to you. But I know it's time for me to make one more coffee for our guest. Till I come back, why don't you carry on the show with our speaker? See ya, bye. सो वेलकम बैक लिसनर्स. आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ एक बहुत अच्छी गेस्ट जुड़ चुकी हैं, अंजलि, जिनसे हम आपको मिलाएंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम समाज में बदलाव ला सकते हैं आर्ट के जरिए, थिएटर के जरिए, और कैसे हम अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को या संवेदनशील मामलों को बहुत ही आसानी से आर्ट और कला के माध्यम से टैकल कर सकते हैं या उसका समाधान निकाल सकते हैं. तो वेलकम अंजलि, हमारे शो में सबसे पहले आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच हिमांशु. इस श्रृंखला में अंजलि, सबसे पहली जो बातचीत मैं आपके साथ करना चाहता हूँ मैं वो ये है कि आप लीडरशिप को कैसे देखती हैं या आपके लिए लीडर्स कौन है? हिमांशु, मेरे नजर में लीडर कोई भी हो सकता है. जरूरी नहीं कि एक देश के जो नेता है या जो पॉलिटिकल लीडर है वही लीडर है, या जरूरी नहीं कि जो अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हैं वो लीडर है. लीडर हमारे ह्यूमन बीइंग में भी होता है, लीडर हम जो जानवर होते हैं उनमें भी होता है. और एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी एक ऐसा इंसान होता है जिसके लोग बात मानते हैं और जो अपने सोसाइटी में चेंजेस लाता है. मेरे नजर में लीडर, एक माँ अपने परिवार में लीडर हो सकती है, एक पिता अपने परिवार में, एक बड़ा भाई बहन, छोटा भाई बहन लीडर हो सकता है. लीडरशिप मेरे नजर में ये है कि जैसे आजकल जनरली एक लीडरशिप की डेफिनेशन चल गई है ना कि लीडर वो है जो लोगों को मोटिवेट करता है, लीडर वो है जो जिसकी लोग बात मानते हैं, लीडर वो है जो सबसे सहानुभूति दिखाता है. अगर लीडर ये है तो फिर इन्फ्लुएंसर कौन है? मुझे लगता है कि इतना में सिर्फ वो इन्फ्लुएंसर है, लीडर सिर्फ ये नहीं है.
लीडर मुझे लगता है एक्चुअल में वो है, या लीडरशिप क्वालिटी एक्चुअल में उस इंसान के अंदर है, जो हो सकता है वो सबसे तारीफें ना सुन रहा हो सकता है कि लोग उससे खुश ना हो, लेकिन तब भी किसी भी सिचुएशन में वो काम कर रहा है और लोगों को काम करने के लिए बोल रहा है और लोगों को इस बात पे मना ले रहा है कि हमें काम करना है और इस टास्क को कंप्लीट करना है विद इन टाइम फ्रेम या एनी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इसे कि जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ, जैसे मेरे मोहल्ले में एक लड़की है, वो जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं उन्हें खाना देती है। अब क्या है, लोग उनको क्रिटिसाइज मतलब ऐसा बहुत लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं स्टार्टिंग में कि देखो स्ट्रीट डॉग्स का कितना ध्यान रखती है, या गाय जो है इनका कितना ध्यान रखती है, उनके लिए बेल्ट ले आई है, रेडियम वाला बेल्ट है, रेडियम वाला ये है, सब कुछ। लेकिन अचानक से एक दिन एक कुत्ते ने किसी को काट लिया, लोग उसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया कि सारी चीजें उस लड़की के कारण हो रही है, ना वो कुत्तों को खाना खिलाती, ना यहाँ पे इतने सारे कुत्ते जमा होते। और अच्छा, उसी वक़्त एक सुप्रीम कोर्ट की भी एक वर्डिक्ट आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था अगर आप कुत्ते को खाना खिला रहे हैं तो आप उनको वैक्सीनेशन भी कराइए। तो क्या सिर्फ एक इंसान की नैतिक जिम्मेदारी बनती है? ऐसा तो नहीं है। अगर वो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहा तो ऐसा थोड़ी कि वो लीडर नहीं है। तो बस अंतर यही है कि लीडर वही है जो हर सिचुएशन में काम करे और लोग उसकी बात मान के काम करें। ये नया नजरिया भी दिया है आपने लीडरशिप को देखने का, जो कि बिल्कुल बहुत सही भी है और कई मायनों में जरूरी भी है। जब हम अपने समाज में देख रहे होते हैं तो हमने लीडर्स को या लीडरशिप को कहीं ना कहीं बहुत सारे सरकमस्टांसेस में या बहुत सारे टर्म्स में बांध रखा है कि कौन लीडर हो सकता है, और ये बहुत बड़े टर्म्स है। हम लीडरशिप को बहुत बड़े मायनों में देखते हैं। तो अंजलि, आपका अनुभव जानने के बाद मुझे लगता है कि बहुत उत्सुकता है मेरे अंदर और हमारे लिसनर्स के अंदर भी आपके बारे में जानने का कि ये अनुभव आखिर आया कहाँ से, ये सारी चीजें आपने समेटी कहाँ से। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को, हमारे लिसनर्स को थोड़ा अपने बारे में भी बताएं। हिमांशु, देखिए जैसे कहते हैं ना कि ये जो एक्सपीरियंस है वो उम्र के साथ आती है, बात सही है। और किसी ने कहा है मंजिल मिल जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। ऑब्वियस, अगर आपको एक्सपोजर चाहिए लाइफ में, एक्सपीरियंस चाहिए लाइफ में, तो आपको बहुत जगह निकलना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो थोड़ी ऐसी ही रही। एक्चुअली हिमांशु, मेरा जो जन्म है वो बिहार में हुआ है और मेरी जो 12th तक की पढ़ाई है वो बिहार से ही हुई है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ी हूँ और उसके बाद मैं अपने हायर एजुकेशन के लिए, कॉलेज करने के लिए मैं रांची आ गई, झारखंड में। और फिर मैंने वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर मुझे थिएटर में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैं काफ़ी साल तक थिएटर में एज एन एक्टर काम की, एज ए डायरेक्टर भी मैं काम की हूँ। कुछ लोकल मूवी में मैं एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम की हूँ और मुझे स्ट्रीट प्लेज बहुत पसंद थे, तो मैंने स्ट्रीट प्लेज में बहुत सारे जो सोशल इश्यूज हैं उनको उठाया है। फिर लॉकडाउन आ गया और मुझे लगा कि सोसाइटी में अब जो हम यूथ हैं उन्हें हमारी बहुत ज़रूरत है, सोसाइटी को यूथ की। तो फिर मैं फुल टाइम पिरामल फाउंडेशन ज्वाइन की और मैं उनके साथ काम की, एजुकेशन पे, वाटर पे, हेल्थ पे। और अब मैं अभी जो फ़िलहाल जो मैं काम कर रही हूँ वो उड़ीसा में ही काम कर रही हूँ और उड़ीसा में ही रहती हूँ। बहुत बार मुझे छत्तीसगढ़ विज़िट करने का मौका मिलता है, या मेरे बहुत सारे कलीग हैं जो बहुत सारे अलग-अलग स्टेट्स में काम कर रहे हैं। तो मुझे भारत को बहुत सारे ब्रॉड नज़रिए से देखने का मौका मिलता है। और साथ में मैं जो थिएटर है, मैं थिएटर से मास्टर्स भी कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। और मेरा आगे मन है कि आर्ट को ही लेके, जो आर्ट है सोसाइटी में एक बहुत बड़ा टॉपिक है चेंज लाने के लिए, तो मैं आर्ट को ही लेके रिसर्च करना चाहती हूँ। तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने जो देखा, मैं जब स्कूल में अपने पढ़ी, मेरा स्कूल जो था वो कोएड था, लेकिन वो जो क्लासरूम में एक साइड लड़के बैठे हैं और एक साइड लड़कियां बैठी हैं और बीच में जो टीचर्स के जाने का रास्ता होता है, वो सिर्फ 2 फीट ना होके, ये जो पिछले 5500 साल से चली आ रही जो परंपरा है ना, ये जो जेंडर गैप की, उनके बीच का फासला उतना था कि एक क्लास में होते हुए भी लड़कियां लड़कों से बात नहीं करती थी, लड़के जो थे लड़कियों से बात नहीं करते थे, हमें अलाउड नहीं था बात करना। अंजलि, तो इसमें से जो बातें उभर कर आ रही हैं, जैसा कि आपने अपने बारे में बताया है, और ये काफी इंटरेस्टिंग है इस बारे में बात करना
कि जब आपने अपने बहुत ही शुरुआती दिनों में ही, जब आप कह रही हैं कि जब आपने स्कूल में ही इन चीज़ों को महसूस करना चालू कर दिया, जेंडर जैसी चीज़ों की, जो कि काफ़ी अलग है आम युवाओं से, आम लोगों से, हम स्कूल में प्रायः इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो मैं अगला जो सवाल है आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अब इतने सालों के अनुभव के बाद अब आप जेंडर और फेमिनिज्म को कैसे देखती हैं? आपका नजरिया क्या है अब जेंडर को लेकर? देखिए हिमांशु, जो जेंडर है, मतलब मेरे लिए मेल और फीमेल बस इतना, मेरे लिए खास करके मेरे लिए मेल और फीमेल बस इतना ही है कि जो नेचर में ने एक जो फिजिकल डिफरेंस बनाया है, एक मेल ह्यूमन बीइंग में, एक फीमेल ह्यूमन बीइंग में, बस इतना ही है। लेकिन हाँ, सोशली जो है उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मैं इसको ऐसे देखती हूँ, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ चीजें अपनी शेयर की, ये आपको याद है क्या कि जैसे मैंने अभी बताया था कि मैं अपने घर आ रही हूँ, मैं बीमार थी, मैं डॉक्टर को दिखाई, मुझे हाँ। रास्ते में एक रेसर मिले थे, हाँ, मैंने उनसे बहुत सारी बातें की। या मैं घर आई तो अपनी भाभी से मैंने पूछा कि आपने खाने में और क्या क्या नया बनाना सीखा है। अब मैं आपसे पूछती हूँ हिमांशु, कि जब मैं डॉक्टर का जिक्र कर रही थी तो आपके दिमाग में मेल डॉक्टर का फोटो आया था कि फीमेल डॉक्टर का? मैं जब आपसे एक रेसर की बात कर रही थी तो आपके दिमाग में एक मेल रेसर आया था कि फीमेल रेसर आई थी? और ये बात सच है कि आपको बिल्कुल अटपटा नहीं लगा होगा कि जब मैं बोली कि मैंने अपने भाभी से पूछा कि भाभी आपने खाने में क्या बनाना सीखा है? अगर मैं यहाँ पे ये बोलती कि मैंने अपने जीजा जी से पूछा या अपने भैया से पूछा या अपने पापा से पूछा कि पापा आपने या भैया आपने खाना में बनाने के लिए क्या सीखा है नया, तो आपका क्वेश्चन होता ओ आपके भैया सेफ हैं क्या? एक्चुअल में यही जेंडर गैप है, मैं इसे ऐसे ही देखती हूँ। एक्चुअल में यहीं पे इनइक्वालिटी है कि हमारे अंदर जेंडर इक्वालिटी बहुत, इनइक्वालिटी जो है बहुत अंदर तक रूटेड है। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हर डे हर मोमेंट हम खुद और हमारे साथ खुद इनइक्वालिटीज हो रही हैं। ये तो बिल्कुल आपने बहुत सही बात कहा अंजलि, कि यूजुअली जब, जैसे आपने रेसर की बात कही, तो ये जनरल टर्म है कि जैसे ही रेसर का नाम आता है तो हम एक मेल इमेजिन करने लग जाते हैं, या जब खाना बनाने की बात आती है तो फीमेल जो है वो हम इमेजिन करने लग जाते हैं, या महिलाओं को ही देखते हैं। तो इन सब में आप फेमिनिज्म को कहाँ देख रही हैं अंजलि? आपको क्या लगता है कि फेमिनिज्म अभी कहाँ एग्जिस्ट करता है, या आपकी क्या विचारधारा है इसको लेकर? फेमिनिज्म की विचारधारा मेरी कुछ ऐसी है ना हिमांशु, देखिए, पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा इस वर्ड में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है कि जो फेमिनिज्म वर्ड है उसका दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि जब किसी भी वर्ड में इज्म लग जाता है ना, तो वो एक डिफिनेशन के अंदर बंध जाता है। तो फेमिनिज्म वर्ड को बनाने की जरूरत ही क्या है? और अदर पर्सन कौन होता है जिससे मैं अपना हक मांगू? क्यों आप जब जन्म लिए थे तो किसी से बोले थे क्या कि मुझे सांस लेने दो? नहीं ना। तो फिर फीमेल क्यों किसी से बोले कि मुझे ये मेरा हक है, मुझे मेरा हक दो? सामने वाला कौन होता है मुझे मेरा हक देने वाला? ये मेरा हक है और मैं अपनी लाइफ को अपने अनुसार जी सकती हूँ। अब क्या है ना, पिछले कुछ सालों में ना फेमिनिस्ट वर्ड या फेमिनिज्म वर्ड को ना बहुत नेगेटिवली लिया जा रहा है और उसका इस्तेमाल भी बहुत नेगेटिवली किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है सोसाइटी के लिए। मैं आपको एक दो एग्जांपल देती हूँ। अभी पिछले कुछ सालों में एक देश में एक एक घटना हुई थी कि जहाँ पे एक फीमेल रोड क्रॉस कर रही थी और उसे लगा कि एक गाड़ी से उसे धक्के ना लग जाए, इसीलिए वो किस मूड में थी नहीं पता, वो ड्राइवर किस मूड में नहीं पता, लेकिन फीमेल ने का जो तरीका था वो अच्छा नहीं था। उसने ड्राइवर को बहुत सारे मतलब स्लैप किए, मतलब बहुत सारे थप्पड़ मारे और बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज में उससे बात किया, जो कि बिल्कुल गलत है, ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन ये जो मुद्दा है ये नेशनल न्यूज बन गया और ये नेशनल न्यूज सिर्फ इसलिए बना, या फिर किस लिए बना नहीं पता, लेकिन ये नेशनल न्यूज कुछ इस तरह से बना कि ये फेक फेमिनिज्म है। लड़कियां अपने एम्पावरमेंट का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और एक गरीब ड्राइवर को सता रही है। ये मुद्दा ऐसे नहीं होना चाहिए था। मुद्दा बस सही और गलत का होना चाहिए था। वो फेमिनिज्म फेक फेमिनिज्म है या लड़की गलत, क्योंकि ऐसी घटनाएं सड़क पे रोज हो रही हैं और मैं इस घटनाओं के एकदम बुराई करती हूँ कि ये तरीका गलत है। किसी को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, चाहे ट्रीट करने वाला इंसान मेल हो या फीमेल हो, या जिसको ट्रीट किया जा रहा है वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन बात कैसे उठी कि ये फेक फेमिनिज्म है, लड़कियां गलत अच्छा, एक और एक घटना हुई कि एक महिला है जो कि
सिक्योरिटी गार्ड को बोल रही है गेट खोलने के लिए, वो गेट खोलने में देर किया है और वो सिक्योरिटी गार्ड से एब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रही है। और ये भी तरीका बिल्कुल गलत है। मैं एकदम सपोर्ट नहीं करती हूँ कि किसी से इस तरह से बात करना चाहिए, भले ही कोई आपसे प्रोफेशन में नीचे हो। लेकिन ये भी एक नेशनल इशू बना, किस तरह से, कि एक फेक फेमिनिज्म है। ये फीमेल एम्पावरमेंट का गलत एग्जाम्पल है। इसको आप इस चीज़ से कैसे जोड़ दे रहे हो? इस तरह की घटनाएँ रोज़ हो रही हैं। अगर वहीं पे एक मेल होता और वो गाली दे के अंदर जाता, ये वीडियो वायरल नहीं होता। ये सिंपल रहता कि हाँ, ये तो रोज़ होती हैं और लोग इसको बस है ना राइट और रॉन्ग के बेसिस पे लेते हैं। लेकिन जब फीमेल और मेल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो राइट और रॉन्ग नहीं होता है, वो फीमेल और मेल होता है। उसको फेमिनिज़्म से जोड़ा जाता है। तो फेमिनिज़्म का सिर्फ़ एकमात्र मतलब है इक्वालिटी। हमें महानता नहीं दीजिए, हमें समानता दीजिए। हमें महान नहीं बनना है, हमें समान बनना है। जनरली जैसे होता क्या है ना कि समाज की जितनी भी नैतिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो महिलाओं पे हैं। अगर महिलाएँ कहीं बहुत बड़े अगर जैसे एक और चीज़ें स्टेटस पे वायरल हुई थी कुछ महीने पहले कि जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, तो बहुत लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि देखो कितनी सभ्य महिलाएँ हैं, साड़ी पहनी हुई हैं। तो मुझे ये आश्चर्य लगा कि क्या कि देखो ये कल्चर को आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे एक भी जो मेल थे वो धोती में थे या कुर्ते में थे। तो क्या समाज के जो सारी नैतिक ज़िम्मेदारियाँ हैं वो महिलाओं की है? कि वो साड़ी पहन के अपने कल्चर को प्रमोट करे, वो पूजा करके अपने कल्चर को प्रमोट करे, वो अच्छी बातें करके कल्चर को प्रमोट करे या फिर वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। तो ये जो है, ये जो समाज की सारी नैतिक ज़िम्मेदारियाँ हैं महिलाओं के ऊपर लाद दी गई हैं या उन्हें ये उनका जो क्या कहते हैं सारथी बना दिया गया है महिलाओं को नैतिक ज़िम्मेदारियों को आगे लेके जाने का, ये समानता नहीं है, यही असमानता है। यहाँ पे दोनों जो जेंडर है उनकी ज़िम्मेदारी सेम होनी चाहिए। अंजलि, आपने अभी एक बात कही जो कि बहुत अच्छी है और मैं इसे आगे लेकर जाना चाहूंगा, जहां आपने कहा कि आपको महानता नहीं, आपको समानता चाहिए। तो अंजलि, जब आपने कहा कि इतनी सारी समस्याओं को आप देखती हैं, आप ऑब्जर्व करती हैं और इन चीजों को आप इतनी क्रिटिकली एनालिसिस कर पा रही हैं एज ए यूथ, जो कि मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है, तो मैं अब जानना चाहूंगा आपसे कि आप इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए या इसके लिए एडवोकेसी के रूप में आर्ट को कैसे देखती हैं, एक टूल की तरह? जब आप कहती हैं कि आप एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और आपने फिल्मों में भी काम किया है, तो आप कैसे देखती हैं आर्ट को? हिमांशु, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैंने आर्ट को नहीं चुना है। अगर मेरे ये में देखा जाए तो सिर्फ मैंने आर्ट को नहीं चुना है, आर्ट ने मुझे चुना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ जब मैं कॉलेज पढ़ने भी आई, तो मुझे मन तो था एक्टिंग करने का, मन तो था थिएटर करने का, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता था। और कुछ दिन बाद कुछ मेरे ही कॉलेज के स्टूडेंट्स आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि हमारे कॉलेज में ऐसा-ऐसा होने वाला है, तो हमें पता चला आप एक्टिंग करती हैं, तो क्या आप हमारे साथ एक्टिंग करेंगी? तो मुझे लगा कि ये आर्ट ही है जो मुझे चुन रहा है, क्योंकि मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे रास्ता पता नहीं रहता था, लेकिन कहीं न कहीं से चल के ना जो जो कला थी वो मेरे पास आ जा रही थी। तो जब आर्ट ने मुझे चुना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी नैतिक ज़िम्मेदारी होती है कि मैं आर्ट को सही तरीके से समाज में लेके आगे बढ़ूँ। और आर्ट सिर्फ़ एक एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, मुझे लगता है। आर्ट एक बहुत अच्छा वेपन है, जो कि सोसाइटी में चेंजेस ला सकता है। बहुत बार क्या होता है कि आप मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत स्कीम्स ला रहे हैं, योजनाएँ ला रहे हैं, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं है उसके ऊपर। लोग का ध्यान तब जाता है जब उन्हें कुछ उसमें अच्छा दिखता है। तो आर्ट एक बहुत ही अच्छा वेपन है, बहुत अच्छा वेपन है, जिसमें किसी को बिना नुकसान किए आप एक बहुत ही अच्छी चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। एक सोशल चेंजेस ला सकते हैं। अपने समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसको हटा सकते हैं। तो अंजलि, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने आर्ट को नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्ट ने आपको चुना है, ऐसा आप महसूस कर पाती हैं। तो आगे मैं ये जानना चाहूंगा, और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मैं भी एक रंगमंच का कलाकार रहा हूँ, थिएटर करता हूँ। तो आपने कैसे आर्ट को कम्युनिटी के लिए यूज किया है, समाज में बदलाव लाने के लिए? जिन भी संस्थाओं के साथ आपने काम किया है, जहां भी आपका अनुभव रहा है, वहां पे आपने कैसे अलग अलग आर्टिस्टिक एक्टिविटीज को इस्तेमाल किया है, यूज किया है? जैसे हिमांशु क्या है ना, जैसे मैं बताती हूँ ना आर्ट ने मुझे चुना है, तो जनरली क्या होता था ना, जब मैं कोई भी जगह को देखती हूँ ना, कोई भी शहर को देखती हूँ, कोई भी घर को देखती हूँ, तो मेरे दिमाग में ना एक कहानी चलते थे।
तो इस तरह से मुझे कहानी बनाने का शौक हो गया, और या फिर डायरेक्शन का शौक हुआ, आप कह सकते हैं। तो जब मैं स्कूल में थी तो उस समय भी जैसे आप जानते हैं कि स्कूल में बच्चों लोग को बहुत सारे मतलब रैलियों में, झांकियों में भेजा जाता है कि रैलियों में जाए, झांकियों में जाए और मतलब अवेयरनेस फैलाएं। तो मेरा मानना था कि सिर्फ रैलियों में, झांकियों में एक पोस्टर लेके जाने से लोग में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं फैलेगा, लोग आएंगे, देखेंगे, चल जाएंगे। तो हिमांशु, मैंने आर्ट को ना बहुत अलग-अलग तरीके से अपने काम में इस्तेमाल किया। जैसे मैंने बहुत सारे संवेदनशील मुद्दों पे नाटक किया और नाटक करवाया, जैसे नुक्कड़ नाटक भी किया, जैसे रेप पे हो गया, एड्स पे हो गया, चाइल्ड लेबर पे हो गया, जेंडर इक्वालिटी पे हो गया। मीम बनवाए हैं या मीम खुद भी बनाए हैं, उसमें प्राइजेस जीता है। जैसे एक्चुअली जब मैं नवरंगपुर गई तो वहाँ पे वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन का बहुत बड़ा इशू था, और मुझे लगा कि यहाँ पे आर्ट एक बहुत बड़ा मतलब अपना रोल निभाएगा। तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल किया, और एक्चुअल में ये लोगों पे बहुत प्रभाव डाला और लोग बहुत ज़्यादा इससे जुड़े, और वहाँ पे एक मुझे चेंजेस देखने को मिला। अंजलि, जब आप नौरंगपुर की बात कर रही हैं कि जब आप नौरंगपुर गई काम करने के लिए और आपको लगा कि यहाँ पे आर्ट यूज करना चाहिए और आपने किया भी, तो क्या आप हमारे साथ कोई एक अनुभव, कोई एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हो जिसपे आपको ये महसूस हुआ हो कि हाँ, यहाँ पे आर्ट यूज हो सकता है और उसने बदलाव भी लाया हो? हाँ, बिल्कुल हिमांशु, मैं आपको एक बहुत अच्छा मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं कहानी बताती हूँ। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब हम लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, तो हम लोग बहुत ऊपर लेवल का सोचते हैं कि अच्छा ये हुआ होगा, ये होता होगा, ऐसे चेंजेस आता होगा, लेकिन नहीं, ग्राउंड रियलिटी जो है वो बहुत अलग है। तो मैं एक छोटा-सा मतलब कहानी आपको बताती हूँ कि जब मैं नवरंगपुर में एकदम स्टार्टिंग डेज़ में गई थी, तो मुझे वहाँ गए हुए कुछ महीने ही हुए थे, और उस समय जस्ट सेकंड लॉकडाउन खत्म हुआ था, और वैक्सीनेशन का अवेयरनेस ना उस सोसाइटी में नहीं था। लोग वैक्सीन के नाम, बहुत सारे रूमर्स थे वैक्सीन को लेके, बहुत सारे अफ़वाहें थे, लोग वैक्सीन नहीं ले रहे थे। तो फिर मैं एक बार ऐसे ही पंचायत की मीटिंग थी और मैं उस मीटिंग को विज़िट करने गई थी कि वहाँ के देखें गाँव के लोग कैसे हैं, वहाँ की कम्युनिटी कैसी है। तो जब मैं उस मीटिंग में गई तो मैं सुन रही थी मीटिंग को, तो जो पंचायत के जो हेड थे, जो प्रधान थे, वो एक्चुअली में लोगों से बात कर रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद वैक्सीनेशन मुद्दा होगा, मैं भी आई हुई हूँ, वैक्सीनेशन मुद्दा होगा, या फिर बहुत कोई बड़े-बड़े मुद्दे होंगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होंगे, बिजली होगी, पानी होगी। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो मैं ये देख रही हूँ कि प्रधान वहाँ के लोगों को समझा रहे हैं कि जब आप टॉयलेट से आए तो आप हाथ धोया करें। तो मुझे लगा कि शायद बच्चों को समझा रहे होंगे, लेकिन देखिए नहीं, वहाँ तो बच्चे नहीं, बहुत मतलब सारे बड़े लोगों को समझाया जा रहा है, जो कि 25 प्लस हैं, 50 प्लस है, 30 प्लस है, मतलब सब एज के लोग हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि आप टॉयलेट से आके हाथ धोया करें। उन्हें बताया जा रहा है कि आप घर की नालियों को साफ रखें। उन्हें बताया जा रहा है कि जहाँ पे आप अपने मवेशियों को रखते हैं, वहाँ के आस-पास के एनवायरनमेंट को साफ रखें। तो मुझे ना बहुत आश्चर्य लगा कि हम लोग मतलब काम कर रहे हैं वैक्सीनेशन पे, हम लोग काम कर रहे हैं बच्चों को स्कूल भेजने पे, और यहाँ पे लोग अभी तक इतने अवेयर नहीं हो पाए हैं कि उन्हें एक्चुअल में नहीं पता है कि जब टॉयलेट से आते हैं तो हाथ धो के खाना खाते हैं। तो ये बहुत ही अलग मुद्दा था, और मुझे आश्चर्य लगा कि इतना मतलब हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं, सोसाइटी इतना मॉडर्न हो गया है, हम लोग सोशल मीडिया या एआई में इतने आगे बढ़ चुके हैं, और इस सोसाइटी में अभी इन चीज़ों को आखिर सब मतलब कारण क्या है? मैंने वहाँ के पंचायत के जो प्रधान थे, मैं उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा कि सर आखिर इतने मतलब मॉडर्न ज़माने में इन चीज़ों को क्यों समझाया जा रहा है? तो उन्होंने बताया कि मैम एक्चुअली यहाँ पे एटीट्यूडनल चेंज की ज़रूरत है। मतलब ये मुझे अपना जैसे उन्होंने बताया, तो मुझे ये निष्कर्ष लगा कि ये एटीट्यूडनल चेंज की ज़रूरत है। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्यों मतलब हाथ धोया जाए, और वो इन्फ्लुएंस क्यों नहीं हो रहे हैं। आखिर कौन हो सकता है जो उन्हें इन्फ्लुएंस करे? और प्लस वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अगर आप कोई भी पोस्टर निकालते हैं, आप कोई भी चीज़ें करते हैं, कोई ऐप के थ्रू अगर उनके कोई मैसेज देते हैं, या कोई मैसेज मतलब जो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, तो वो पढ़ेंगे तब तो उस चीज़ों को समझेंगे। तो मुझे लगा, तो फिर मैंने वहाँ हमारे एक स्टेक होल्डर एनजीओ थे, तो हम लोगों ने बात किया कि ऐसा करते हैं कि उसके जस्ट 1-2 दिन बाद गांधी जयंती थी। तो गांधी जयंती थी, तो हमने ऐसा सोचा कि जैसे गांधी जी जो देश में अ, अपने टाइम में भी सैनिटाइजेशन को एक मुद्दा बनाए थे, और वो मतलब
घर के टॉयलेट को और आसपास के एनवायरनमेंट को साफ करने की बात कहते थे। तो और उस दिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी होती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है। तो हमने क्या किया, एनजीओ की मदद से गांव के बच्चों को लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के गेटअप में तैयार किया और हम लोगों ने एक झांकी निकाली और जिसमें कि ये सारे मुद्दे उठाए गए कि मतलब सैनिटाइजेशन को कैसे मतलब बढ़ावा दिया जाए, कैसे मतलब हाथ धोया जाए, आसपास को साफ रखा जाए। तो वो जो एक अट्रैक्शन था ना गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री को देखने का, तो लोगों में वो ये जल्दी जल्दी बातें फैली, लोग घर से बाहर निकलने लगे देखने के लिए। और क्या हुआ कि लोग जब बाहर निकले, बहुत सारी भीड़ जमा हुई और लोग सुनने भी लगे कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि ये जो चीजें हैं ना, लोगों को बहुत दिन तक याद रही। उन्हें उनके गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इस तरह की कोई मतलब आर्टिस्टिक चीजें हुई थी कि कोई इस तरह का मतलब बन के आया था गांधी जी और ये, या फिर कहीं उन्होंने ऐसा कोई नाटक भी नहीं देखा था। तो लोग घर से बाहर निकल के आए और फिर वहां पे लोगों ने हमें बताया, एनजीओ ने बताया कि लोग मतलब उस घटना इंसिडेंट को हुए, मतलब ये जो इवेंट है इसे हुए लगभग 2-3 साल हो गए हैं लोग, लेकिन लोगों को आज भी याद है। और लोग इसको इस तरह से याद रखे हैं कि जब मतलब इतने बड़े जो हमारे देश के नेता रह चुके हैं लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी, तो अगर इन लोगों ने भी इन मुद्दों को उठाया है तो ऑब्वियसली ये चीजें करनी चाहिए। तो इन पे इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, वो लोग काफी इन्फ्लुएंस हुए इन चीजों से। और जब भी उन्हें मतलब जो उनका जो जो सबसे बेसिक चीज था एटीट्यूडनल चेंज लाना, इससे उनके अंदर बहुत बड़ा एटीट्यूडनल चेंज आया, लोग इन चीजों को मानने लगे। और अब मैं वहां पे जब जाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ चेंजेस तो आए हैं। तो अंजलि, ये बहुत ही मजेदार अनुभव आपने और बहुत ही मजेदार उदाहरण आपने हमारे साथ साझा किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बहुत सारे जो लिसनर्स हैं, जो अभी हम सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पॉडकास्ट सीरीज में, कहीं ना कहीं ये उनको इंस्पायर भी करेगा कि इस तरीके की चीजें हम कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी में। अंजलि, इतनी चीजों पे अलग अलग तरीकों से काम करने के बावजूद आप समस्याओं को कैसे देख रही हैं? आपको क्या लगता है कि कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें आज भी अलग तरीके से देखने की जरूरत है? एज ए यूथ आप उन्हें कैसे देख रही हैं, और उनके समाधान भी हमें अलग तरीके से सोचने पड़ेंगे? ऐसी कौन सी समस्याएं हैं आपको लगता है? हिमांशु, जैसे देखिए क्या होता है ना, जब हम और आप जैसे अभी इस पॉडकास्ट में के थ्रू बात कर रहे हैं अपने लिसनर से, या फिर जब हम एक मीटिंग हॉल में बैठ के बात करते हैं मुद्दों पे या किसी पेपर पे मुद्दों पे पढ़ते हैं, तो वो ना बहुत ऊपरी सतही चीजों पे होती हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी पे जाएंगे ना, तो मतलब मामला बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे मैं आपको, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मेरा जन्म जन्म बिहार में हुआ है और मैं काफ़ी दिन तक बिहार में रही, फिर मैं झारखंड में पढ़ाई की, अभी मैं उड़ीसा में रह रही हूँ। और मेरा छत्तीसगढ़ भी मतलब अपने काम को लेके आना जाना लगा रहता है, या मेरे रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं। और थिएटर के दौरान भी मैं बहुत सारे राज्य को विजिट की हूँ। तो मैंने मेरा एक्चुअली देखिए, जो आप जानते हैं जो आर्टिस्ट होता है वो चीज़ों को बहुत बारीकी से एब्जॉर्ब करता है और ऑब्जर्व भी करता है। तो मैंने बहुत सारे मुद्दों को ना बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया और मैंने पाया कि एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी ना बिल्कुल अलग है। जैसे मैं आपको 1-2 मुद्दे के बारे में बताती हूँ कि जब मैं नवरंगपुर में की एक मैं घटना बता रही हूँ कि मैं अपने एक स्टेक होल्डर्स एनजीओ से बात कर रही थी। तो बात के दौरान पता चला कि हम वहाँ हमारे सोसाइटी में ना चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर भी बहुत हाई है, और जो गर्ल चाइल्ड है उसमें चाइल्ड मैरिज जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने एनजीओ से बात की है कि सर क्यों ना इसके अवेयरनेस के लिए हम आर्ट के एक मुद्दे को आर्ट के थ्रू इसको ये करते हैं। तो वो मतलब इस पे बातें हो रही थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जानते हैं मैम, एक्चुअल में मुद्दा सिर्फ लड़कियों को रेस्क्यू करके चाइल्ड मैरिज से ले आना नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा ना उसके बाद का बन रहा है। और हिमांशु, वो मुद्दा क्या था ना कि जब हम लोग लड़कियों को रेस्क्यू करके चाइल्ड मैरिज से ले आए, मतलब लड़की कोई शादी हो रही है उसे शादी होने से बचा लिया गया, जैसे मान लीजिए 12 साल की लड़की है, 14 साल की लड़की है, 16 साल की लड़की है या 15 साल की लड़की है, तो शादी करने से बचा लिया गया। वो शादी के मंडप से उठ के घर तो आ गई, लेकिन अगर वो बच्ची 14 साल की है और उसकी शादी 18 साल के बाद हो सकती है, ये जो 4 साल का गैप है ना, ये 4 साल का गैप उनके लिए बहुत ज्यादा डिप्रेसिव था, क्योंकि इस बीच में उनके पेरेंट्स उन्हें बोझ समझ रहे थे। इस बीच में उनके पास सोसाइटी में कोई मतलब कहते हैं ना डिग्निटी वाली लाइफ होती है, डिग्निफाइड लाइफ नहीं थी, और एक मतलब बोझ की तरह वो अपने घर में पल रही थी। तो इसका समाधान क्या है?
तो हम लोगों ने फिर इस पे बात की कि ऐसा कर सकते हैं कि हम उन्हें स्किल डेवलपमेंट दे सकते हैं, मतलब उनका स्किल डेवलप कर सकते हैं ताकि ये अपने लिए कुछ काम कर सके, अपने घर में पैसे भी कमा के ला सके। लेकिन वो जो एक सोशल लाइफ जो है उनका वो खराब हो गया, वो जो मेंटल हेल्थ है वो खराब हो गया। इस पे सिर्फ एनजीओ काम करने से नहीं होगा, इस पे सिर्फ मेरे काम करने से नहीं होगा, इस पे सिर्फ जो गवर्नमेंट है उनके काम करने से नहीं होगा, इन सारे लोगों को साथ में आना पड़ेगा। मैं एक और आपको बात बताती हूँ छत्तीसगढ़ की। वहाँ पे मुझे पता चला कि वहाँ पे जो शराब पीने की जो लत है वो इस हद तक है कि लगभग हर एक घर के जो मेल हैं वो शराब पीते हैं, वो काम भी करते हैं तो उस काम के पैसे शराब पी जाते हैं, और उस घर की जो फीमेल है वो घर घर जाकर चौका चूल्हा कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं, पोछा कर रही हैं। और वो ना ही सिर्फ शराब पीते हैं, वो घर आके अपनी जो वाइफ है उसको मारते हैं, पीटते हैं। और अब आप सोचिए, आपको लगा क्या अभी भी ये सब चीज़ें हो रही हैं? तो हाँ, हो रही हैं। लोग वो एक मैं महिला से बात कर रही थी, उसके हस्बैंड ने उसे इतना मारा था कि मतलब वो बिस्तर पे आ गई थी, उसका सर एकदम मतलब उसको सीटी स्कैन करवाने की ज़रूरत पड़ी। तो अब क्या है ना, इससे क्या हो रहा है ना हिमांशु, उस घर के जो बच्चे हैं उन पे इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उस महिला के हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, हम लोगों ने बोला कि आप पुलिस में चल के शिकायत करो, तो आप अब देखना यहाँ पे कितना मतलब एक डिलेमा है कि आप क्या सॉल्यूशन लाओगे इसके लिए? क्या आप ला सकते हो? गवर्नमेंट ला सकती है? सोसाइटी ला सकती है? वो महिला खुद ला सकती है? कौन ला सकता है? आप इसके कड़ी को समझिएगा। जब हमने बोला उस महिला से कि आप चलो के पुलिस को शिकायत करो, वो बोली पुलिस को क्या शिकायत करूँगी? पुलिस बुलाएगा हमें, समझा के वापस भेज देगा। फिर मैं जब घर जाऊँगी तो ये और मुझे मारेगा। तो हम लोग बोला ठीक है, आप पुलिस को बोल दीजिएगा कि इन्हें जेल में कुछ दिन रखें। तो बोले कि मैं अगर उसे जेल में मैं घर जेल भेज दूँगी, लेकिन वो तो जेल चला जाएगा, फिर मैं हूँ, मेरी बच्चियाँ हैं, हमें कौन सेफ रखेगा? कम से कम वो मारता है, पीटता है, जो भी करता है, लेकिन जो आस-पास के लोगों की नज़र में हम सेफ तो हैं, उनकी नज़रों से तो सेफ है ना, क्योंकि मेरे घर में मेरा हस्बैंड है, एक मेल है। लेकिन जब वो ये चला जाएगा, जेल चला जाएगा तो हमें कौन सेफ रखेगा? तो अब ये सबसे बड़ी बात थी कि बात तो सही बोल रही है, गलत तो नहीं बोल रही है। तो अच्छा, आप शराब का मुद्दा है, शराब बेचती भी सरकार है, सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स आता है शराब से, शराब उसे रेगुलेट भी नहीं करना चाह रही है, उसे कंट्रोल भी नहीं कर रही है, तो आप किसके पास जाएँगे इसके सॉल्यूशन के लिए? क्या सिर्फ़ आप सरकार के पास जाएँगे दारू को लेके, या आप महिला आयोग में जाएँगे महिला की सेफ्टी को लेके, या आप पुलिस के पास जाएँगे, या बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए जाएँगे? कहाँ जाएँगे? ये आपने बहुत अच्छी और बहुत उम्दा बात कही अंजलि, कि सबको एक साथ आने की ज़रूरत है। और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमें एक साथ आना होगा, और हम युवाओं को एक साथ आना होगा, जो कि हम जानने की या टटोलने की कोशिश कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि कैसे हम यूथ लीडरशिप को देखते हैं। तो अंजलि, अगला जो सवाल है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे समस्याओं और इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच जो आपने ऑब्जर्व किया अपनी कम्युनिटी में, अपने कॉलेज में, अपने लाइफ में, और इतना सारा फ्रस्ट्रेशन है, इतनी नेगेटिविटी है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इस बीच एज ए यूथ आप क्या होप रखती हैं? आप उम्मीद और बदलाव को कैसे ले रही हैं? किस तरीके से देख रही हैं? एक यूथ लीडर के तौर पर आपको क्या लगता है कि हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं, और कैसे हमें और काम करने की ज़रूरत है, और आप कितना उम्मीद रखती हैं अभी? देखिए हिमांशु, मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी ना, जैसे अभी हम लोग ने बहुत सारे मुद्दों पे बात किया, मैंने स्टार्टिंग से एक चीज़ों पे जोर दिया है कि सोच पे, कि हम चीज़ों को कैसे सोचते हैं। हमारे पास स्कीम्स हैं, हमारे पास योजनाएँ हैं, हमारे पास जो है जो सर्विसेज़ के लिए पुलिस है, हमारे पास एक जुडिशियल सिस्टम है, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी प्रॉब्लम क्यों नहीं जड़ से खत्म हो रहा है? हमारे संस्कृत में एक लाइन है, मनसा वाचा कर्मणा। एक्चुअल में जिसका मतलब ये होता है कि अगर हमको कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन लाना है, तो हमारा मन, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म, जो मतलब व्यवहार मतलब कि हमारा जो विचार है, और जो हमारा काम है, ये तीनों ना एक होना चाहिए। अगर ये तीनों एक जब तक नहीं होगा ना, कि इसको जैसे इंग्लिश में हम समझते हैं, सो हम लोग एक शॉर्ट वर्ड में कहते हैं इंटीग्रिटी। अगर इंटीग्रिटी नहीं है ना, तो ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएँगी। जैसे अभी का जो बात है, जैसे जो कोलकाता वाली घटना हुई डॉक्टर के साथ, हम लोग, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे लोग इसके विरोध में उठे, सब लोग आगे आए। लेकिन दिक्कत क्या है ना हिमांशु, कि आज हम इसके विरोध में उठ रहे हैं, लेकिन आपने
मैं इसे मूवी से, जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं मूवी से कनेक्ट करूँगी कि हमने पिंक मूवी देखा था ना, पिंक मूवी में अमिताभ बच्चन जी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि किसी लड़की को बोलना कि वो सुंदर लग रही है और किसी लड़की को बोलना वो माल लग रही है, इसमें बस फ़र्क होता है हमारी सोच का। एक्चुअल में बस डिफ़रेंस यहीं पे है कि हमारे अंदर इंटीग्रिटी है कि नहीं। हम एक मुद्दे के लिए खड़े तो हैं, लेकिन क्या हमारे बिहेवियर में, क्या हमारे एटीट्यूड में और क्या हमारे काम में वो चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं सिर्फ़ हम सोच रहे हैं, लेकिन काम उस पे कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि एक मुद्दे पे हम वहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो एक्चुअल एटीट्यूड है, जो कि धीरे-धीरे बनते-बनते हमारे एक्शंस में आ जाता है, वो कहीं पे कुछ और है। कि कल आप लड़कियों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं और जब आप सड़क पे जा रहे हैं तो अपने दोस्त के साथ हंसी उड़ा रहे हैं कि देखो देखो क्या सुंदर लड़की है, क्या माल जा रही है, इस तरह से करके। एक्चुअल में चेंजेस अपने मानसिकता में लाने की है और ये सबके मानसिकता में आनी चाहिए। ये नहीं कि कोई सर्विस में आ गया है तो उनमें सोच नहीं है। अगर कोई घर पे है बैठा हुआ इंसान तो उसमें ये सोच है कि नहीं है। तो प्रॉब्लम इंटीग्रिटी की है और अगर हमें इंटीग्रिटी आएगी तो ये सॉल्यूशन होगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जैसे आपने टीवीएफ की एक सीरीज देखी होगी पंचायत। पंचायत में एक गांव का सचिव रहता है, वो गांव में जॉब करने के लिए जाता है, ठीक है। अब बस ऐसा कुछ मत करिए, सब सिचुएशन वही है, सारे कैरेक्टर वही हैं। पंचायत सचिव में मेल की जगह फीमेल को डाल दीजिए, क्या कहानी सेम रहेगी? क्या स्क्रिप्ट सेम रहेगा? जैसे वो वीकेंड में चिल करने के लिए गांव में एक फील्ड में बैठ के चिल करते हैं, क्या फीमेल गांव में वीकेंड में चिल करने के लिए एक फील्ड में बैठ सकती है? तो एक्चुअल में चेंजेस लाने की ज़रूरत यहीं पे है कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ों में अगर जेंडर की बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी इंश्योर करना पड़ेगा और ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, चाहे वो चाइल्ड लेबर हो, चाहे वायलेंस हो, चाहे कोई भी इशू हो, कम्युनिटी की छोटी से बड़ी इशू जो भी है, उन सब में जो मैंने बोला मनसा वाचा कर्मणा, जब तक ये तीनों से नहीं कोशिश की जाएगी चेंजेस आने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो अंजलि, हम लोगों ने काफी बातें की, अलग अलग मुद्दों पे बातें की। हमने ये समझने की कोशिश की कि जेंडर कैसे एक आइडेंटिटी ना होकर एक समस्या बन चुकी है हमारे समाज में, कैसे ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, उनके लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कैसे हम आर्ट को यूज कर सकते हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए, थिएटर के बारे में बताया, मैंने भी कुछ उदाहरण साझा किए। इन सभी के लिए और इन सारे अनुभवों को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि थोड़ी सी हमारे पास समय की एक सीमा है और इसलिए हम अपनी बातचीत को आज यहीं पर रोकेंगे। लेकिन अंजलि, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन द लास्ट ऑफ दिस एपिसोड क्या कुछ आप शेयर करना चाहती है हमारे लिसनर्स के साथ, या हमारे पॉलिसी मेकर्स के साथ, हमारे पावर होल्डर्स के साथ, जो लोग भी इसे सुन रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या आप अपना अनुभव या कुछ ऐसे डिमांड्स जो आप इस पॉडकास्ट के जरिए शेयर करना चाहती हैं या बोलना चाहती हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू टू माय लिसनर, जो लोग ने मुझे अभी तक यहाँ तक सुना है। ज़्यादा ज़्यादा मैं उनसे भी बस यही बोलूँगी कि अब नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कोई भी एक्शंस करें, कोई भी अपने थॉट्स रखें, तो ज़रूर उसमें देखिएगा क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके छोटे-छोटे चीज़ों में कहीं जेंडर इनइक्वालिटी तो नहीं आ जा रही है। तो बस हमें यही चेंजेस अपने में लाने की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं बोलना भूल गई, कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो थैंक यू टूडल, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। थैंक यू अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि हम आप आगे आपसे भी जुड़े रहेंगे। इट्स टाइम टू से बाय फॉर नाउ। थैंक यू लिसनर्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इस पॉडकास्ट सीरीज में आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों के साथ। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। आप अपने फीडबैक्स हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। फॉर रेगुलर अपडेट्स प्लीज कनेक्ट थ्रू सोशल मीडिया। थैंक यू, बाय, जिंदाबाद, जोहार।